Good morning, students. Today we will do word work, okay, from chapter first, Friends Forever. Okay, in last video we have done question answers and whatever exercise are given in your book, we have done all that, okay, like multiple choice questions and match the following we have done in last video. Okay, student, today we are going to start word work from page number 4. Okay, so take out your book and open page number 4. In this video, in this lecture, we will learn phrasal verb. Those are given in your book. We will learn about that. Okay, so first, student, we have learned what is the phrasal verb. A verb. What is the phrasal verb? A verb that is combined with an adverb. A verb that is combined with an adverb or preposition. Okay, sometime both और कई बार दोनों से combined होती, ठीक है, and has new meaning, और उसका क्या होता है, बिल्कुल new meaning होता है, ठीक है. To give new meaning is called phrasal verb. Okay, I repeat again, a verb that is combined with an adverb or preposition, sometimes both, to give new meaning. Okay, it is called phrasal verb. ठीक है. So student, in this, okay, page number 4 from downside, okay, these are some phrasal verb are given in your book. So can you help out like this? Help out मतलब कि एक दूसरे की help करना. He was going to have to stay up, okay, late tonight to work on his project, so he could help Sudesh in the morning. तो stay up यहाँ पे क्या है, ये भी इसमें phrasal verb है. देखो यहाँ पे ये up लगा है, तो अब क्या है इसमें, अब इसमें एडवर्ब इसमें कंबाइन हो रखा है. इसके आउट क्या है, इसमें ये भी एडवर्ब है, वो इसमें हेल्प में मतलब कंबाइन हो रखा है. सो दिस इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब लाइक दिस. ओके, एंड पेज नंबर 5, टर्न पेज नंबर 5. सॉरी, लेट्स मूव ऑन द पेज नंबर 5. त्रिशूल्स backpack felt even heavier as he walked into the house and flopped down on the couch. यहाँ पे walked into house मतलब कि घर के अंदर जाना, इस तरह से यहाँ पे walked into का ये phrasal verb है. As soon as he hung up, he turned to his mom. Okay, जैसे hung up में as soon, जैसे उसने फ़ोन रखा, वो अपनी मम्मी की तरफ देखा, उसने अब घूमा मतलब, तो hung up मीन्स क्या हो गया यहाँ पे, ये भी phrasal verb मतलब फ़ोन रखने के लिए हम यूज़ करते हैं hang up. Okay, so this is the second form of this verb. So student, let's see in your book again, what do the highlighted word mean. यहाँ पे जो highlighted word है इनका mean आपको मैंने बताया just. So these words are formed with a verb along with a position word or a word that describe a verb, that they are called phrasal verbs. Okay, examples जैसे break in means क्या होता है, किसी के घर में ज़बरदस्ती ताला तोड़कर घुसना. fall apart means मतलब कि इधर उधर कोई चीज़ मतलब कि तोड़ना, एक तो बिखेरना, ठीक है ना. और कैचअप मीन्स किसी चीज़ को पकड़ना, जैसे बस पकड़ना, कैचअप मीन्स. ओके, ड्रॉप आउट किसी चीज़ को छोड़ना, गेट अलोंग मीन्स मिलकर रहना, ठीक है. सो दीज आर द मीनिंग ऑफ दीज फ्रेजल वर्ब, दोज आर गिवन इन दिस एग्जाम्पल. ओके, so now let's move on this phrasal verb, those are written on the board. So students, see verb, phrasal verb, okay, and these are meaning of these phrasal verb. Okay, so you have to note down in your book or notebook also these phrasal verb. Those student have book, they don't need, okay, they don't need to write, but those do not have this book, they have to write. उनको लिखना है, they have to write these all phrasal verb. Okay student, and those have book, they will understand. Okay, so watch this video till the end carefully. कॉल ऑफ मीन्स क्या होता है, ये इसमें ये फ्रेजल वर्ब हो गए. लाइक जैसे आपके फ्रेजल वर्ब मैंने आपको वर्ब्स बताई थी ना, सेम इन दोनों का मीनिंग निकलता है, एक न्यू मीनिंग निकलता है, ठीक है. इसमें हम सेपरेटली मीनिंग नहीं देखते, इसमें दोनों का मिला के मीनिंग निकलता है. सो कॉल ऑफ, तो यहाँ पे कॉल ऑफ मीन्स क्या है, टू स्टॉप डूइंग ऑन कैंसल और कैंसल समथिंग, मतलब
टू स्टॉप डूइंग, किसी काम को करने से रोकना, और कैंसिल, किसी चीज़ को कैंसिल करना, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कॉल ऑफ। आप बोल सकते हो कि टुडे माय मीटिंग हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ, कि मेरी आज मीटिंग कैंसिल हो गई, तो इसके लिए आप इस तरह सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। वाइप ऑफ, वाइप ऑफ मीन्स क्या होता है, टू क्लीन समथिंग विथ अ क्लॉथ और टिश्यू, मतलब किसी चीज़ को, जैसे आप टेबल चेयर को किसी साफ करना है तो किससे, विथ अ क्लॉथ और टिश्यू, उसके मतलब उससे साफ करते हो तब उसको क्या बोल सकते हो, वाइप ऑफ। ओके, देन यू कैन यूज दिस फ्रेजल वर्ब लाइक दिस, कि वाइप ऑफ दिस टेबल, इट्स लुक लाइक डर्टी। ओके, आप बोल सकते हो ऐसे, टर्न ऑफ। ओके, टू स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन अ मशीन, मतलब कि किसी भी इलेक्ट्रिक जो डिवाइस होते हैं उनमें जो स्विच ऑफ करते हैं अपन लोग, उसको स्विच ऑफ करना बोलते हैं, बंद करने के लिए। ओके, टू स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन अ मशीन। ओके, नो शो ऑफ, शो ऑफ मीन्स आपने सुना होगा कि शो ऑफ मत करो, जैसे कई लोग अपनी कोई नई चीज़ लेके आता है या कोई अपनी किसी भी चीज़ को दिखाता है, मतलब कि जैसे और उसको इग्नोर करते पर वो चला के दिखा रहा है उसको, इट मीन्स वो शो ऑफ कर रहा है उस चीज़ का, ठीक है। तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो शो ऑफ। ओके, टू बूस्ट, टू इम्प्रेस समबडी। ओके, टू बूस्ट, टू इम्प्रेस समबडी, किसी को इम्प्रेस करना, किसी चीज़ को दिखा के, ठीक है। टीयर ऑफ, टू रिमूव समथिंग बाय रिपिंग इट, मतलब किसी चीज़ को रिमूव करना, फाड़ के, जैसे आपको सपोज आपके पास कोई पेपर है, आप इसको मतलब कि रिमूव करना चाहते हो, कि आप उसको मतलब कि हटाना चाहते हो कि नहीं, मुझे पेपर को नहीं रखना, कोई ज़रूरी मैसेज हो या कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हो, बट यू वांट टू रिमूव दिस, आप उसको रिमूव करना चाहते हो, सो फॉर दिस यू हैव टू यूज टीयर ऑफ। ओके, टू रिमूव समथिंग बाय रिपिंग इट। ओके, रिपिंग मीन्स क्या होता है, फाड़ना, ठीक है, फाड़ कर। गेट ऑफ, गेट ऑफ मीन्स क्या होता है, इट इज़ यूज फॉर व्हीकल, ये मोस्टली व्हीकल के लिए यूज़ किया जाता है। व्हेन वी लीव एनी व्हीकल, जब हम किसी व्हीकल से उतरते हैं या उसको लीव करते हैं, देन दैट टाइम वी यूज गेट ऑफ, लाइक टू लीव अ व्हीकल लाइक बस, ट्रेन, कार एक्सेट्रा। जब भी आप कार, बस, ट्रेन से उतरते हो, देन इट मीन्स यू आर गेटिंग ऑफ। ओके, टेक ऑफ, टेक ऑफ मीन्स क्या होता है, एक तो आपने सुना होगा जब भी फ्लाइट टेक ऑफ करती है, ओके, तो उसके लिए अपन यूज़ करते हैं। देन रिमूव समथिंग, किसी चीज़ को रिमूव करने के लिए अपन बोलते हैं रिमूव समथिंग, स्पेशली अ पीस ऑफ क्लोथिंग और शो और शूज़। ओके, टू रिमूव समथिंग लाइक स्पेशली अ पीस ऑफ क्लोथिंग और शूज़, जैसे शूज़ भी आप बोलते हैं ना, जैसे शूज़ उतारने के लिए आपको बोलना है, तो आप क्या वर्ड मतलब वर्ड यूज़ कर सकते हो, आप बोल सकते हो टेक ऑफ योर शूज़ आउट ऑफ दिस रूम। ओके, आप किसी को भी मान लो, सपोज कोई घर पे आ रहा है और वो आप चाहते हो कि वो शूज़ उतारे, देन यू कैन से टेक ऑफ योर शूज़ आउट ऑफ दिस रूम। ओके, तो किसी भी चीज़ को उतारने के लिए आप बोल सकते हो टेक ऑफ, और ये व्हीकल को जैसे टेक ऑफ करने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट व्हीकल्स स्टार्टिंग टू मूव, ठीक है। नाउ टू ऑफ, सॉरी, पुट ऑफ। Put off means to push forward to a later time, to be made to be feel badly about something, मतलब जब आप किसी चीज़ से बैडली फील करते हो, आपको बैडली फील हो रहा है, अच्छा फील नहीं हो रहा, तब आप उसको आगे के लिए पुश कर रहे हो, फॉरवर्ड कर रहे हो उस चीज़ को, ठीक है। देन वी कैन यूज पुट ऑफ। ओके, सो स्टूडेंट, these are meaning of this phrasal verb. So now this is your book work, like first exercise, complete the sentence, use the phrasal verb you just learned, जो भी आपने अभी ये phrasal verb पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग आपको these exercise you have to complete. Okay, according these phrasal verb you have to complete these exercise. Okay, so let's see. Okay, first you have to tell me, okay, here I made you understand its meaning. So now from this is meaning, according this meaning you have to tell me its answer. Okay, so now first he wanted dash his new car to his friend. So what will come here, tell me, can you tell me? He wanted dash his new car to his friend. So now I am going to raise here, you can take a screenshot or you can write. Okay, I hope you have taken. Now I am going to raise this. Okay,
So student, these phrasal verbs you have to learn, those are given in your book, okay? So first he wanted to dash his new car to his friend. So here we will write show off. तो क्या आना चाहिए यहाँ पे? शो ऑफ. वह अपने शो ऑफ करना चाह रहा अपने न्यू कार को अपने फ्रेंड्स से, ओके, फ्रेंड्स को. नाउ सेकेंड, शी हैड टू डैश टू सीक्रेट मैसेज आफ्टर शी हैड रीड इट. मतलब कि वह करना चाहती है, मतलब उसको करना है डैश टू सीक्रेट मैसेज, जो उसका सीक्रेट मैसेज है, आफ्टर शी हैड रेड, मतलब कि शी हैड रेड इट, मतलब पढ़ने के बाद में. तो क्या आना चाहिए यहाँ पे? टीयर ऑफ, ओके. अकॉर्डिंग दिस सेंटेंस टीयर ऑफ, मतलब कि फाड़ना चाह रही है उसके सीक्रेट मैसेज को आफ्टर उसके पढ़ने के बाद, ठीक है. नाउ डैश योर शूज बिफोर यू एंटर द टेम्पल, ओके. डैश योर शूज बिफोर यू एंटर द टेम्पल. क्या करना है यहाँ पे? व्हाट विल कम हियर? यहाँ पे आएगा टेक ऑफ योर शूज, कि अपने शूज को उतारो, मतलब कि टेम्पल में एंटर होने से पहले. सो टेक ऑफ, ओके. नाउ द चिल्ड्रन हैड टू डैश द पिकनिक बिकॉज इट वॉज रेनिंग. चिल्ड्रन को डैश करना पड़ा क्या? पिकनिक को, क्योंकि रेनिंग हो रही थी. कॉल ऑफ, मतलब कि उसको कैंसिल करना पड़ा. देन वी विल राइट हियर कॉल ऑफ, ओके. किसी भी चीज़ को कैंसिल करने के लिए आप बोल सकते हो कॉल ऑफ, ओके. या आज हमने वहाँ पे जाना कैंसिल कर दिया, देन यू कैन यूज कॉल ऑफ, ओके. आई विल, नाउ टेल मी, आई विल डैश एट द नेक्स्ट बस स्टॉप. क्या आना चाहिए यहाँ पे? लिसन, यस, गेट ऑफ, कि मैं नेक्स्ट बस स्टॉप पे रुकूंगा. तो मैंने जस्ट आई टोल्ड यू कि गेट ऑफ का यूज़ हम किसी व्हीकल को लीव करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है. नाउ वी विल राइट हियर गेट ऑफ, ओके. नाउ डोंट फॉरगेट डैश द एयर कंडीशनर व्हेन यू लीव द रूम. जब आप रूम को छोड़ोगे तो क्या फॉरगेट करना, मतलब क्या फॉरगेट मत करना? तो टर्न ऑफ. नाउ यू हैव टू राइट हियर टर्न ऑफ, ओके. टर्न ऑफ, स्विच ऑफ करने के लिए टर्न ऑफ बोलते, ठीक है. रोहन हैड टू डैश द डस्ट दैट हैड कलेक्टेड ऑन दिस कंप्यूटर. सो वी विल राइट हियर वाइप ऑफ. We will write here wipe off, okay. Now H, she was dash by the boring movie so she slept through it, okay. उसको मतलब कैसा फील, मतलब कि she was put off, मतलब कि वो बैडली फील कर रही थी, ठीक है. by the boring movie, इस मतलब कि मूवी को देखने से, so she slept through it, तो सो गई, ठीक है. then here we will write here put off, okay student. So you have to fill these blanks, those are given in your book according to the sentence, okay. So now just downside read these sentences. These are some phrasal verb also. So read these sentences downside page number 6. Read these sentences. Fareen waved goodbye as the bus pulled up to their stop. तो यहाँ पे pulled up means क्या होता है? वहाँ पे मतलब कि रुकने से है, कि जब बस उनके बस स्टॉप पे रुकी तो उसने अपने मतलब गुड बाय किया हैंड्स को हिला के, ठीक है. इफ़ अ व्हीकल पुल्स अप इट स्टॉप्स, मतलब कि अगर कोई व्हीकल पुल्स अप होता है इट मीन्स वो रुकता है, ठीक है. पुल इन, पुल आउट एंड पुल ओवर ऑल्सो रेफर टू द मूवमेंट ऑफ व्हीकल. और ये पुल इन है, पुल आउट है, पुल ओवर है, ये भी मूवमेंट मतलब व्हीकल के मूवमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं, ओके. लाइक जैसे द ट्रेन फ्रॉम गुवाहाटी इज पुलिंग इन, द ट्रेन फ्रॉम गुवाहाटी इज पुलिंग इन प्लेटफॉर्म नंबर 1 शोइंग डाउन टू स्टॉप, मतलब कि स्लोइंग डाउन किसी चीज़ को, मतलब जैसे ट्रेन को कोई बस स्टॉप आता है तो उससे पहले वो धीरे धीरे मूव करती है, ठीक है, वो स्लो हो जाती है.
सो पुलिंग इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना, पुलिंग इन का मतलब. नाउ सेकेंड वन इज द ट्रेन बाउंड फॉर आगरा पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. तो मूव्ड आउट, यहाँ मतलब कि वो मूव्ड आउट मतलब निकलने के लिए, रवाना होने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है. वी पुल्ड ओवर नियर द पार्क एंड गॉट ऑफ. वी पुल्ड ओवर नियर द पार्क एंड गॉट ऑफ, मतलब कि यहाँ पे पुल्ड ओवर से का मीनिंग क्या है, मूव्ड टू साइड ऑफ द रोड एंड स्टॉप्ड. मतलब कि साइड मतलब रोड के बिल्कुल साइड में जाके मूव करना और उसको वहीं पे साइड मतलब रोड के साइड में लेके उसको स्टॉप करना. देन वी विल यूज हियर पुल्ड ओवर. ओके, सो अकॉर्डिंग दिस सेंटेंस वी हैव टू यूज डाउन साइड. ओके, सेकेंड, चूज अ सुटेबल एक्सप्रेशन फ्रॉम द box and use it to fill in the blanks. Okay, first, Asha was speaking to her friend when a car. Asha was speaking to her friend when a car. So we will write here, tell me, pulled up near her. कि कार उसके जब वो अपने फ्रेंड से मतलब कि बात कर रही थी तब एक कार उसके पास में आके रुकी, ठीक है, नियर. तो यहाँ पे हम वी विल राइट हियर पुल्ड अप. Okay, रुकी. It means we will write here second form of this verb. Okay, the train pulled out at the right time. Pulled out at the right time मतलब कि ट्रेन अपने सही समय पे रवाना हो गई. Then here we will also write its second form, pulled out. Okay, now third one is the van. The van at the dash at the police station with a group of policemen. Then we will write here pulled in. Okay, मतलब कि वो धीरे से मतलब कि वहाँ पे पुलिस स्टेशन के पास आके वो रुकी, ठीक है. सो पुल्ड इन. ओके ओके स्टूडेंट, इसमें देखो अब यू कैन सी एक ही इस पुल से ही हमने कितने वर्ब बनाए, इस पर इसका मीनिंग अलग अलग निकल रहा है, ठीक है ना. तो दिस इज फ्रेजल वर्ब. यहाँ पे we pulled over, we dashed to check for any fault in the car as we felt something was wrong. ओके, हम अपनी मतलब कार में क्या खराबी है उसको चेक करने के लिए जो मतलब कार थी उसको साइड में रोड के किनारे जाके मतलब साइड में लेके उसको रोका. सो वी विल राइट हियर पुल्ड ओवर. ओके, साइड में रोकने के लिए पुल्ड ओवर यूज़ करते हैं, धीरे से रोकने के लिए पुल इन. ओके, और मतलब कि रवाना होने के लिए पुल्ड आउट यूज़ करते हैं और रुकने के लिए क्या यूज़ करते हैं, पुल्ड अप. ओके, सो दीज आर द मीनिंग ऑफ दिस phrasal verb. Okay, according to the sentence. So you have to fill in this blank, those are given, okay, in this exercise. Okay student, I hope you have completed this work. And student, you have to learn this verb. Okay, you have to learn these phrasal verb with meaning. And in next video we will start next chapter. Okay, till then, bye bye.